اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم ناظرین و مخاطبین، بالخصوص در بطول سے وابستہ تمام مومنین ذوی الاحترام، میں آپ سب کی عبادات، اعمال اور طاعات کی قبولیت کے لیے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں میں آپ کے سامنے اس دعا کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کروں گا کہ جو دعا ہر روز رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، دعائے یا علی و یا عظیم۔ بڑی عظیم دعا ہے یہ، دعا بھی ہے، درس بھی ہے، پیغام بھی ہے، اس میں سکون قلب کا ذریعہ بھی موجود ہے، اس میں اپنے رب سے گفتگو کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے، اس میں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے آشنا ہونے کا ہنر بھی بتایا گیا ہے، اس میں قرآن مجید کے الفاظ بھی ہیں، اس میں معصوم کے کلمات بھی ہیں، اس میں آیت ربانی بھی ہے، اس میں حدیث قدسی بھی ہے، اس میں حدیث معصومین بھی ہے۔ عظیم دعا، مختصر دعا، مگر فضائل اور کمالات و معارف و مطالب کا ایک گہرا سمندر ہے جو اس دعا کے شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ معصومین کا ارشاد ہے اور ہماری اور آپ کی یہ روش ہے علماء کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہ ہر روز ہر نماز کے بعد ماہ مبارک رمضان میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جو سلیقہ امیر المومنین نے اور امام سجاد نے اپنی دیگر دعاؤں میں سکھایا ہے، وہی انداز اس دعا میں بھی ہم کو بتایا گیا کہ جب اپنے رب سے گفتگو کرو تو پہلے اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی کا اعتراف کرو۔ یا علیو یا عظیم، اے پروردگار ہم تیری بزرگی کا، تیری کبریائی کا، تیری عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے وہ خدا جو علی ہے، جو بڑا ہے، جو بزرگ ہے، جو برتر ہے، جو کبیر ہے، اور اے وہ خدا جو عظیم ہے، ساری عظمتوں کا اختتام جس کی ذات پہ ہے، وہ خدا کہ جس سے وابستہ ہو کر کوئی صاحب عظمت ہوتا ہے، جس کے سامنے ذلیل ہو کر کوئی عظیم بنتا ہے۔ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرنے کے بعد اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا اظہار کرو تاکہ وہ غفور و رحیم و کریم اپنے مغفرت اور رحمت کے حصار میں تم کو شامل کر دے۔ یا غفورو یا رحیم، اے وہ خدا کہ جو غفور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا ہے، جو رحمتیں نازل کرنے والا ہے۔ یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، تو ایسا رب ہے۔ جب ہم نے اس کی کبریائی اور اس کی مغفرت و رحمت و عظمت کا ذکر کر دیا تو اس سے گفتگو اس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں
मासूम के बताए हुए सलीके के एतबार से कि अंत रब्बुल अज़ीमुल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै, तो ऐसा रब है अंत रब्बुल अज़ीम कि जो अज़ीम है, हमारा पालने वाला भी है, अज़ीम भी है, और ऐसा रब अज़ीम है कि लैसा कमिस्लिही शै, कि जिसके जैसी कोई शय नहीं है, उसका मिसल नहीं है। यकीनन कुरान मजीद ने जगह जगह ये ताकीद की है कि लैसा कमिस्लिही शै, खुदा के जैसा कोई नहीं है, खुदा का मिसल कोई नहीं है। मिसल रब के बारे में तसव्वुर करना भी गुनाह अज़ीम है, शिरक के मुतरादिफ है। लैसा कमिस्लिही शै, वह ऐसा रब है कि जिसका मिसल कोई नहीं है, जिसके जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै वहुव अस्समीउल बसीर, और वो खुदा समी भी है, बसीर भी है। जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा है, मगर इंसान की जो सिफ़तें हैं वो सिफ़तें सुनने की, देखने की, सोचने की, समझने की बदरचे अतम उस खालिक में पाई जाती है। इसलिए कि फ़लसफ़े में एक मक़ूला मशहूर है कि फ़ाक़िद शय मोती शय नहीं होता। चीज़ का देने वाला उस चीज़ से ख़ुद गैर बहरामंद नहीं होता है, फ़ाक़िद नहीं होता उस चीज़ के लिए। खुदा जिस्म नहीं रखता, इसलिए कि जिस्म मकान चाहता है और मकान महदूदियत के मुतकाज़ी है। खुदावंद आलम लामहदूद है, लिहाजा किसी मकान में महदूद नहीं रह सकता। लेकिन ये बशर जिस्म रखने के बाद अपनी आँखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है। वो ऐसा कादिर मुतलक है कि जिस्म की महदूदियत न रखने के बावजूद उसके सिफ़ात ऐसे लामहदूद हैं कि आँख और कान न रखने के बावजूद वो सब कुछ देखता भी है, सब कुछ सुनता भी है। वो समी भी है, वो बसीर भी है। वह समीउल बसीर वहाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु व करमतहु व शर्रफ़तहु व फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर। खुदावंद आलम की अज़मतों का एतराफ़ करने के बाद बंदा उस माह मुबारक के रमज़ान की गुफ्तगू करने के लिए अपने रब से आमादा हो जाता है कि इस रमज़ान से मुतालिक दुआ है, और बंदा ये अर्ज़ करता है कि परवरदिगार आलम हाज़ा शहरुन, ये वो महीना है कि अज़्ज़मतहु, जिसको तूने बड़ा अज़ीम बनाया है, व करमतहु, जिसको तूने करामत और बुज़ुर्गी अता की है, व शर्रफ़तहु, और तूने इसको शराफत अता की है, व फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर, और इस महीने को तूने तमाम महीनों पर फजीलत और बरतरी अता की है। यकीनन नबी की हदीस मासूमीन के फ़रामीन के एतबार से तमाम महीनों का सरदार जो महीना है वो माह मुबारक के रमज़ान है। और आप जानते हैं इस मुबारक महीने में नबी ने फरमाया है कि इन बंदों का जो इबादत रब्बानी करने में मशगूल होते हैं, जो बंदे अल्लाह की वहदानियत का एतराफ़ करते हैं, अज़मतों का एतराफ़ करते हैं, कलमा गो हैं, इन बंदों का सो जाना भी इबादत है। इन बंदों की तस्बीहें, इन बंदों की सांसें भी तस्बीह हैं। यहाँ ये महीना वो है कि इस महीने में बड़े कमालात छुपे हुए हैं। शैतान कैदी हो जाता है और इस महीने में परवरदिगार अपने बंदों के लिए आज़ादी, नारे जहन्नम से रिहाई और आज़ादी के मुख्तलिफ़ बहाने फ़राहम करता है। शैतान को कैदी बना करके ये आवाज़ देता है कि तुम कुछ तो अमल अंजाम दो, कुछ तो ऐसा करो कि मुझे महसूस हो कि मेरा बंदा हमारी बारगाह में आया है दस्ते सवाल फैलाए हुए। तो याद रखना कि इस महीने में हम तुम्हारे सवाल को वापस नहीं लौटाएंगे और तुम्हारे सवाल को ज़रूर पूरा करेंगे। अल्लाह ने इस महीने की साआत में, लम्हात में, बिलखुसूस नमाज के वक्त दुआ की जाती है, जो उन दुआओं को कबूल करने का वादा कर लिया है, ज़मानत परवरदिगार आलम ने ले ली है। तो कुरान कहता है, इरशाद होता है, मासूम फरमाते हैं कि फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर व हुवा शहरुल्लज़ी फ़रज़्ता सियामहु अलैया। ये वो महीना है कि जिस महीने के रोज़ों को परवरदिगार आलम
तूने मुझ पर वाजिब किया है। कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा वैसे ही वाजिब किया गया है जैसे तुम्हारे पहले की उम्मतों पर और कौमों पर वाजिब किया गया था, ताकि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। रोज़े के बहुत से फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा खुद इस आयत में छुपा हुआ है कि इंसान रोज़ादार बनता है तो तक़वा रब्बानी में इजाफ़ा होता है, वो खौफ खुदाबंदी से रूबरू होता है, उसकी चाशनी को महसूस करता है। रोज़ादार जब रोज़ा रखता है तो जहाँ उसको दूसरे लोगों की मोहताजों की भूख और प्यास का एहसास होता है, वहीं दूसरी जानिब महशर में जो प्यास और शिद्दत अतश होगी, उस शिद्दत अतश का एहसास इंसान यहाँ पे करते हुए अपने अमाल को बेहतर करने की कोशिश करता है और साथ साथ तक़वाए इलाही की शाहराह पे गामज़न होता है। फ़रस्तहु सियामो अलैया वहुव शहरो रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल कुरान। परवरदिगार आलम, ये वो महीना है कि जिसमें तूने रोज़ा वाजिब करार दिया हमारे ऊपर, और ये वो महीना है कि हुआ शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल कुरान, कि इस महीने में तूने कुरान नाजिल किया है। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। बल्कि हम मुहिब्बान अहले बैत से कहें, दोहरे कुरान का नुज़ूल इस महीने में हुआ है। कुरान सामित का नुज़ूल भी हुआ है, कुरान नातिक का नुज़ूल भी हुआ है। अगर 15वीं रमज़ान को कुरान नातिक की शक्ल में फ़र्ज़ंद ज़हरा का वजूद दुनिया वालों को मुनव्वर करता है, मुज़य्यन करता है और मुतबर्रिक करता है, तो फिर शब 19 या शब 21 या शब 23 रमज़ान मुबारक में कुरान सामित का नुज़ूल होता है। शब क़द्र के सिलसिले से अलग से बयान की गई गुफ्तगू और हमारी तकरीर में आप मुलाज़ा कर सकते हैं, शब क़द्र की अज़मतों को बयान किया जाता है। और उसमें यह भी बयान किया है हमने कि शब क़द्र की जो अज़मतें हैं, शब क़द्र की जो रातें हैं, वो 3 रातों को शब क़द्र क्यों कहा जाता है, मासूम ने एक शब को मुअय्यन क्यों न किया। इसी तरीके से जो लोग ज़ौक़ रखते हैं और शौक़ रखते हैं, वो कुरान मजीद और अज़मत माह रमज़ान, या ये कहिए कि बहार रमज़ान और तिलावत कुरान उन्वान के तहत भी हमारी गुफ्तगू समाअत फरमा सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें हमने अलग से इस गुफ्तगू को तफसील से बयान किया है। लिहाजा यहाँ पर तफसील से बात करने से मैं कासिर हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि ये महीना वो महीना है कि जो माह मुबारक रमज़ान है, माह कुरान है, माह अज़मत व बरकत है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में कुरान नाजिल किया गया है। वो कुरान कि जिसके लिए नबी फरमाते हैं कि कुरान औलाद पढ़े तो वालिदैन की मग़फ़िरत होती है, वालिदैन पढ़ें तो बच्चों को फ़ायदा पहुंचता है। वो कुरान कि जिसके नबी फरमाया कि तुम जितना भी मुमकिन हो सके तुम कुरान पढ़ो। एक आयत अगर कुरान की माह मुबारक रमज़ान में तुम पढ़ते हो तो साल भर में पढ़े जाने वाले पूरे कुरान के सवाब के बराबर तुम्हें अजर मिलेगा। ये कुरान वो है कि इसके लिए इरशाद होता है, फ़क़रऊ मा तयस्सरा, जितना मुमकिन हो पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा पढ़ो। और उस कुरान के लिए इस दुआए या अली या अज़ीम में हम अपनी ज़बान से कुछ कलिमात जारी करते हुए अर्ज़ करते हैं कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये कुरान वो किताब है कि जो लोगों के लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। मोमिनीन अगर पढ़ें तो उनकी मारिफत में इजाफ़ा होता है, गैर मोमिन पढ़े तो साहिब ईमान हो जाता है। नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हुदल लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये कुरान वो है कि जो एक फ़र्क कायल करने वाला है, वाज़े करने वाला है और रहनुमाई करने वाला है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, हिदायत और फ़ुरक़ान के जो रास्ते हैं उनको वाज़े करने वाला है, हिदायत से बंदे को बाखबर करने वाला है, आशना करने वाला है, हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क को बताने वाला है। चुनांचे ऐलान होता है सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। ये किताब मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। वहाँ सूरह बकरा में इरशाद हुआ और यहाँ ये ऐलान होता है हुदल लिन्नास, दायरे को वसी किया गया। न सिर्फ ये कि मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है, बल्कि अगर
कोई भी पढ़े, नास पढ़ें, लोग पढ़ें, आवाम पढ़ें, तो लोगों की हिदायत का सबब बन सकता है। लोगों के, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, मोमिनीन पढ़ें, मुत्तकीन पढ़ें, तो उनके ईमान में और उनकी मारिफत में इजाफे का सबब ये कुरान बनता है। गैर मोमिन पढ़े तो उसके ईमान लाने का सबब ये कुरान मजीद बन जाता है। वजालता फ़ीहे लैलतल क़द्र वजालता खैरम मिन अल्फ़ शहर, और इसी महीने में तूने शब क़द्र को करार दिया है। शब क़द्र भी कुरान की वजह से है। बहुत सी अज़मतें हैं, बहुत सी जहतें हैं शब क़द्र की अज़मतों की, लेकिन अज़ीम तरीन जहत ये है कि उस रात में कुरान नाजिल हुआ है। और अल्लाह फरमाता है सूरह इन्ना अंज़लना में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ये कुरान वो है जिसको हमने शब क़द्र में नाजिल किया है। तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, शब क़द्र वाली क्लिप में इसको आप तफसील से मुलाया फरमा सकते हैं। कुरान मासूम फरमाते हैं, ऐलान होता है, हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वजअलता फ़ीहि लैलतल क़द्र वजअलता खैरम मिन अल्फ़ शहर। अब जब हम अज़मत रब्बानी का एतराफ़ कर चुके, उसकी बुज़ुर्गी और उसकी किबरियाई का ऐलान कर चुके, और हम ये बयान कर चुके कि परवरदिगार गफ़ूर है, रहीम है, उसकी बारगाह में अर्ज़ कर चुके, रमज़ान की अज़मतों का एतराफ़ कर चुके, कुरान की अज़मतों का एतराफ़ कर चुके, अब तमाम एतराफ़ात के बाद बंदा आजिज़ी के बाद और आजिज़ी के साथ अपने रब की बारगाह में अपना अर्ज़ पेश करता है, अपने आराइश पेश करता है, अपनी दरख्वास्त रखता है, और क्या कहता है? या ज़लमन्ने वला युमन्नु अलैक, अये वो खुदा के जो एहसान करता है, मिन्नत करता है, और उसके ऊपर कोई मिन्नत और एहसान करने वाला नहीं है। या ज़लमन्ने वला युमन्नु अलैक मुन्ना अलैया बिफ़िकाके रक़बति मिनन नार, परवरदिगार मुझ पर एहसान फरमा इस तरीके से कि मुझे नारे जहन्नम से नजात दे दे, मेरी गर्दन को छुटकारा दे, यानी मेरे वजूद को आतश जहन्नम से नजात अता फरमा। परवरदिगार हमें जहन्नम के हवाले न करना, खुदावंद आलम हमें उन लोगों के साथ इकट्ठा न करना कि जो अहले बला हैं, जो अहले मुसीबत हैं। परवरदिगार आलम, दुआए कुमैल में मौलाए कायनात ने इस मफ़हूम को बड़ी तफसील से पेश किया है। परवरदिगार आलम अतुसल्लितुन नार अला वजूहिन खर्रत लिअज़मतिका साजिदा वअला अलसुनिन्नतका बितौहीदिका मादिहा। परवरदिगार आलम हमारी ज़बानों पे नारे जहन्नम को मुसल्लत न करना, हम तेरी तौहीद का एतराफ़ करते हैं। हमारे दिल पर, हमारे जहन पर, हमारे वजूद पर नारे जहन्नम को मुसल्लत न करना। परवरदिगार आलम हमें नारे जहन्नम से नजात देना। परवरदिगार आलम हम आज़ाब आखिरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू जानता है, तू बाखबर है कि दुनिया की थोड़ी सी मुसीबतों पे हमारा वजूद छूट जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर आखिरत के दर्दनाक अज़ाब को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि वो तेरे इंतकाम का नतीजा होगा, तेरे गुस्से का नतीजा होगा। खुदावंद आलम दुनिया की जो बला और मुसीबत है वो मुख्तसर है, थोड़े दिन रहने वाली है, फिर ख़त्म हो जाने वाली है, लेकिन जो आक़िबत की मुसीबत है, आखिरत की मुसीबत है, ततूल मुद्दतो वयदूम मकामो, परवरदिगार वो तूलानी है, वो हमेशा रहने वाली है। परवरदिगार जब दुनिया की मामूली सी तकलीफ़ को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आखिरत जैसे दर्दनाक, आखिरत के दर्दनाक अज़ाब पे हम किस तरीके से तहम्मुल का इजहार कर सकते हैं। खुदाया अपना करम हमारे शामिल हाल रखना और नारे जहन्नम से हमें नजात अता फरमाना। खुदावंद आलम जहन्नम की आग हमारे ऊपर मुसल्लत न करना। या ज़लमन्ने वला युमन्नु अलैक मुन्ना अलैया बिफ़िकाके रक़बति मिनन नार फ़ीमन तमुन्नु अलैहि वअदखिलनिल जन्नह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार आलम हमें उन लोगों में से करार देना कि जिनके ऊपर तेरा एहसान हुआ है, तेरी मिन्नत है, तेरा करम है। परवरदिगार जो साहिब मन व करम हैं, खुदावंद आलम हमें उन लोगों में शामिल कर देना कि जो तेरे अहबाब हैं, जो तेरे अक़रबा हैं। यही बात तो मौलाए कायनात ने दुआए कुमैल में इरशाद फरमाई है, अपने रब से गुफ्तगू करते हुए बारगाह अहदियत में अर्ज़ किया है, परवरदिगार आलम हमें उन लोगों के साथ इकट्ठा न करना जो तेरे दुश्मन हैं, अहले बला हैं। परवरदिगार हमें उनके साथ बुलाना, उनके साथ मशहूर करना, उनके साथ रखना कि जो तेरे दोस्त हैं, तेरे अज़ीज़ हैं। वया ज़लमन्ने वला युमन्नु अलैक मुन्ना अलैया बिफ़िकाके रक़बति मिनन नार वअदखिलनिल जन्नह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हमें जन्नत में दाखिल कर देना अपनी रहमत की वजह से। तू रहमान भी है, तू रहीम भी है।
وہ رحمان ہے کہ جو دنیا میں ہم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، ہمیں نعمت وجود سے آراستہ کیا، بشر بنایا، اشرف المخلوقات کی صفوں میں شامل کرتے ہوئے لطف کیا۔ البتہ اگر ہم اپنے عمل کی وجہ سے اشرف المخلوقات کی صفوں میں رہ جائیں، ورنہ اگر عمل انسان کا اچھا نہیں ہوتا تو اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق بن جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن تو نے اپنے ارادے کے تحت ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یہ تیرا کرم تھا، تو نے رزق دیا، یہ تیرا لطف ہے۔ تو مسلسل دنیا میں نعمتیں ہمارے اطراف میں اکٹھا کیے رہتا ہے، اور پروردگار عالم ہمیں نعمتوں کے حصار میں رکھتا ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ اور پروردگار عالم تو رحیم ہے، تو دنیا میں بھی نعمتوں کا نازل کرنے والا ہے، رحمتوں کا نازل کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحمت کا نازل کرنے والا ہے۔ پروردگار تیری آخرت میں رحمت یہ ہوگی کہ جس طریقے سے تو دنیا میں ہمیں معاف کر سکتا ہے، ویسے آخرت میں بھی اپنی مغفرت ہمارے شامل حال کر سکتا ہے۔ یا ارحم الراحمین کہہ کے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، وہ خدا کہ جو دنیا میں بھی رحمت نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی رحمت نازل کرتا ہے، اپنی رحمتیں دنیا میں بھی ہمارے شامل حال کر دے اور آخرت میں بھی ہمیں شامل حال کر دے۔ آخر میں اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم جو لوگ بھی جہاں جہاں بھی اس ماہ مبارک رمضان میں بالخصوص تیرے دین کی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، بالخصوص در بطول سے وابستہ افراد، اور جہاں جہاں بھی، چاہے USA میں، ہندوستان و پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں، جہاں جہاں بھی جو خدمتیں انجام دے رہے ہیں، خدایا سب کی طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ بالخصوص ہماری اس درسی مہم میں ہماری حوصلہ افزائی کرنے والے اور اپنے مشوروں سے نوازنے والے جناب مسعود نقوی صاحب اور ان کا ساتھ دینے والے تمام افراد، بالخصوص زیب صاحب جو ہمارے ساتھ مسلسل اسراف مسئلے میں جڑے ہوئے ہیں اور ہماری گفتگو آپ تک منتقل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو افراد بھی آپ کے ساتھ ہیں، پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں خداوند عالم ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے اور ان سب کی توفیق میں اضافہ فرما، اور پروردگار عالم جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وبا سے تمام دنیا بشریت کو، بالخصوص دنیا شیعت کو، دنیا اسلام کو نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔